नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, Tahavur Rana is here. Tahavur, yes. That's a great achievement for the government of Fantastic India, achievement. Yes, for the Indian security forces, Yes, and for yes. all the diplomats who worked very, very hard, and the legal team that worked very, very hard to see Exactly. that this man should be brought to trial over here in India. Yes. 17 बरसों के बाद, sir, 17 सालों के बाद. It's been 17 years since you and I covered the Exactly. 26/11. You were there just outside the Yeah, and place of incidents. yes, and I did go inside also for a very short Yes, while. yes, But yes. the fact is, 26/11 investigation has still not brought closure to the victims because nobody will believe. I still don't believe कि ये 3 के 4 के 5 के 6 पंजाबी गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के पेंडू जिनको पढ़ना तक नहीं आता अच्छी तरीके से, वो बोट में आए, उनके पास GPS था और वो सीधे साधे घुस गए। उनको मालूम था कि वो कामा हॉस्पिटल कहाँ पर है, Exactly. उनको मालूम था VT स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर है, उनको मालूम था ओबरॉय होटल कहाँ पर है, उनको मालूम था शबद हाउस कहाँ पर है यानी नारीमन हाउस, और उनको मालूम था ताज होटल कहाँ पर है। Exactly. 2 सेकंड में। सर मैं जब मुंबई आया था उस वक्त बॉम्बे था 1993 में, 27 जून 1993 आई लैंडेड इन बॉम्बे। सर मुझको, एंड आई वाज स्टेइंग इन साउथ बॉम्बे, ताज होटल की लोकेशन, मैं रिट्स में रहा करता था, ताज ये हीरोज के साथ तिज रिट्स से ताज होटल की लोकेशन क्या है वो पता करने में मुझको सर 1 हफ्ता लग गया था। Yes. और आप ये कह रहे हैं ये अनपढ़ गंवार पेंडू मदरसा छाप सारे के सारे, they are such geniuses कि इनको 2 सेकंड में, और and at that time if you remember Google Maps wasn't even so developed. Wasn't. उनको GPS दिया गया और माशाल्लाह वो वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, मतलब कमाल है। Rightfully speaking, Pakistanis instead of Indians, हिंदुस्तानी जो हैं आज की तारीख में 60 to 70, almost 70% of all the world's CEOs of all the major IT companies are Indians. Rightfully, they should be Pakistanis. बिल्कुल. And they should all be from the Gujranwala district, from where Mr. Kasab came. मतलब मेरी समझ के बाहर है अभी तक. Very frankly, I think more needs to be investigated. I hope this will come out. So the first time you've seen the nation, the country, the government is absolutely strong on hitting out at terrorism. Zero tolerance to terrorism is the slogan of the Prime Minister, and that has been followed down where Amit Shah is concerned. Ab dekho, everybody believes that these things have to end, and it has to end in a big way. There is no simple जो appeasement है कि आप investigation यहाँ तक रोकिए, आगे मत जाइए. All those things are things of the past. You're going to the root of the cause. In every cases, including drugs, they say it's not that you catch the person, you go to the root of the problem and eliminate that. And that's the way they want functioning. And the zero tolerance to terrorism is ultimately coming out truth. The greatest catch of all times, Tahavur Rana, who served in the Pakistan army, and for whatever reason he took Canada, but he was a part of the entire 26/11, and he was a part of more to come. More things to come until Tukaram Umle, our brave police officer, constable, caught hold of Kasab. That's and right. That gave up the entire story. तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, अगर मान लीजिए हमारे तुकाराम उमले साहब ने वो कसाब को नहीं पकड़ा होता तो ये तो बोलते थे कि RSS ने करवाया। So sir, that's what Rakesh Maria in his book, whatever he says they came with the red band around there. जी, जो लाल फीता बांध करके, बिल्कुल वो क्या है वो मौली बांध करके, yes. बस तिलक नहीं लगाया था, वो भी लगा, वो उसकी कमी थी बस। So now we have a government that is going to the root cause. Now if you see, even among the Congress, you have Manish Tiwari who wrote a book that 26/11, the people expected more from the Congress government. The response was lukewarm. In fact, the response was nothing. We were going around with files everywhere. Dekho ye hua, dekho wo hua. I mean, we need to change that kind of approach. If a leader talks about these things that
we'll develop proof, हम proof देंगे, and Pakistan went on denying that इसमें कोई proof है, there is no actionable evidence that you're giving. It was just a mockery of what we were saying of diplomatic relations, That's of right. what we were doing Which is as a right. state, as a tough state. We never showed ourselves as a tough state. But anyway, congratulations to the government. I hope this goes on. I hope to God we really and truly come to the truth. If you remember, Pradeep ji, Yes, yes, sir. we interviewed those two girls बिल्कुल बिल्कुल. Who had partied. You did it very well. who had partied with this Kasab and his associates. Yes, yes. 3-4 वो कहते 3-4 दिन हम लोगों ने पार्टी करी इकट्ठे लियोपोल्ड के कैफे के आसपास. And she was one of the first girls to have been hit, by the way. Yes, By yes. this same And Kasab. the bullet injuries, she showed it out in your program where you interviewed her. That's right. The bullet injuries अब on वो the कहती abdomen. है, अब वो कहती है उसकी फ्रेंड भी साथ में थी, उसको भी गोली लगी. वो कहती है कि भाई मैंने पूरी की पूरी जो है अपनी एविडेंस दी पुलिस को, and nobody followed up. I hope it will be followed up now, because I can't believe that there was no sleeper cell here. I can't believe that there was nobody to provide them with logistics here. I can't believe that there was nobody within the Taj Hotel itself who did not provide these guys with help. Not possible. Impossible. You need to have a government that is determined to, you don't think about the elections, you think about what is good for the nation. That is exactly what this government is doing. Why are you trying to cover up? मेरा सिर्फ ये कहना, why are you trying to cover up? And as far as that David Headley is concerned, I hope to God we get him also one of these days. But he is a CIA asset, so it will be very, very difficult. Anyway, I think we've got a wonderful panel of guests today. We've got Ganesh Khankar Saab of the BJP, Bharat Soni Saab and Yogesh Chile Saab. At the moment, of course, we only have Bharat Soni Saab with The us. evergreen Bharat Soni Saab. Bharat Soni Saab, so congratulations. Namaskar, Bharat Soni Saab. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तो भरत सोनी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपको बधाई हो. सबसे पहले तो बधाई हो महावीर जयंती की, और दूसरी बधाई हो कि तहावुर राना अब दिल्ली आ गया है, उसको पेश किया गया पटियाला हाउस कोर्ट में. अब मेरा ये कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं भले ही 17 साल के बाद हो, आफ्टर 17 years, I hope we'll get closure on what really happened during 26/11 over here in Mumbai. Your thoughts on the subject, sir, please, Bharat Soni sir. सर, पहले तो हमारे सारे दर्शकों को, निश्चंदाओं को और आपको और प्रदीप जी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं. भगवान महावीर जी की जो प्रेरणा है, जो शांति के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने सिखाया, वो बहुत ही अच्छा है और हमारे देश के लिए काफी बड़ी बात है ये. तो जी सर, अभी मैं आता हूं. आपने जो क्वेश्चन रेज किया है कि जी. 26/11 के जो आतंकवादी हमले में जो मुख्य आरोपी थे, उनको तहव्वुर हुसैन को किस प्रकार से यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हम लोग ला रहे हैं और लाने का तय हो गया है. तो सर, ये काम जो शुरुआत हुई थी वो 11 नवंबर 2009 को ही शुरू हो गई थी, जब यूपीए सरकार थी. पहली बड़ी कार्रवाई जब एनआईए नई दिल्ली में डेविड हेडली को, ताहूर राणा और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया, उस समय से शुरू हो गई थी सर. और अगर आप मुझे परमिट करें थोड़ा सा, तो सर सारी कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए 2011 में यह तय हुआ कि एनआईए के चार्जशीट का हिस्सा बने. अब 2000 ये सारी बातें हमारे जो पूर्व गृह मंत्री है और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने ये सारी प्रेस के माध्यम से दी है. तो 2014 में सरकार बदलने के बाद भी ये प्रक्रिया चल रही थी. तो इसका कहना, और जिस प्रकार से अब जो सब जो बोल रहे हैं और क्रेडिट लेने की बात आ रही है, तो उसमें से थोड़ा सा उन्होंने सोचना चाहिए कि आप, इनकी सरकार भी तो 2014 से आ गई थी, उसको क्यों 10 साल लगे? 11 साल 11 साल उनको भी तो लगे 11 साल. तो सर, ये सारी इंटरनेशनल मामले की बात होती है. सर, वैसे मोदी जी ने दाऊद को भी लेके आने के लिए बात कही थी. अभी तक दाऊद हम लोग नहीं लाए. 10 साल से देख रहे कि दाऊद को किस लाया जाए कि नहीं करके. जी बिल्कुल. तो ये सब सिक्योरिटी के मामले हैं सर, ये सब सिक्योरिटी के मामले हैं. और जिसमें सोनी साहब, कांग्रेस लीडर्स themselves, in fact Manish Tiwari, one of his senior leaders, wrote a book on 26/11. He said the response was lukewarm. The response जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सरकार से डिफेंडिंग द कंट्री बिकॉज ऑफ अटैक ऑन द कंट्री,
It was an attack on the country, an attack on Mumbai, 26/11. And our response was not at all convincing. That is Manish Tiwari in his book. Now among the Congress itself, there has been strong resentment the way Manmohan Singh government acted at that particular time. Soni sir. सर देखिए, मनीष तिवारी जी जो बोल रहे हैं वो उनको जिस प्रकार से दिखाई दिया उस प्रकार से बोल रहे थे। हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनीष तिवारी जी जिन्होंने बुक लिखा है वो ये सारी बातें जान के उससे पता करने के बाद लिखना होता था। सर अगर हमारी सरकार है, हमने क्या किया जब चिदम्बरम जी इतना सारा लिख रहे तो मनीष तिवारी जी के पास भी ये होना चाहिए था। तो उन्होंने, लेकिन सर क्या है देखिए, फिर से बात आ रही है कि हमारे कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है और वो अपनी बातें रख सकते हैं। उन्होंने लोकसभा के पटल के ऊपर भी, आपने सही पिक्चर दिखा रहे हैं, लोकसभा के पटल के ऊपर भी कहा है और बुक में भी कह रहे हैं। तो सर जनता को डिसाइड करने लीजिए कि इसमें हम लोग गो स्लो जा रहे थे या इंक्वायरी ठीक से हो रही थी। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आदरणीय सम्माननीय दिग्विजय सिंह जो अभी भी कांग्रेस में ही है, कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर हैं, और आपके और प्रदीप जी और मेरे बड़े अच्छे मित्र कृपा शंकर सिंह जो अब भारतीय जनता पार्टी में, उन दोनों ने एक शख्स है अजीज बर्नी साहब जो हमारे कलीग हुआ करते थे सहारा में, वो उन्होंने किताब लिखी थी कि किस प्रकार ये पूरी आरएसएस की साजिश थी, ये 26/11 जो थी उसका विमोचन, उस पुस्तक का विमोचन इन दोनों लोगों ने किया था। तो उससे क्या हुआ कि बहुत लोगों के बीच में ये भ्रम फैल गया कि यार ये कांग्रेस क्या कर रही है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन राइटफुली स्पीकिंग, दे शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। और पहले दिन मुझे अभी तक याद है, हम तो कवरेज कर रहे थे वहाँ पे, और उसके बाद क्या है कि बाद में द फर्स्ट डे व्हेन इट हैपेंड I was not able to react on the same day. I still remember because I was there at the Taj. I reacted the next day. हमारे एक और बड़े अच्छे मित्र मेरे, he was very very dear friend of mine, Mr. A.R. अंतुले साहब जो हैं, उन्होंने भी रिएक्ट किया कि शायद ये आरएसएस का है मामला। तो rightfully speaking, sir, I think the Congress should have been more responsible. Very frankly, Congress needs more people like you. I'm not flattering you. That is because I've known you for a long time. My point is they should be more responsible in their responses and their reactions. And at that time, Mr. Rakesh Maria was investigating the entire thing and so on and so forth. And I questioned Rakesh Maria on so many occasions. He was a friend of mine. Still is, I hope. I'm not sure. And I told him, hey, listen, these are two girls which we have interviewed. They say that they partied with Kasab for 5 days before 26/11. और आप मतलब उनकी जो एविडेंस है उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? Why aren't you investigating that angle? That these guys were already here. So मेरा ये कहना है सर कि there are lots and lots of questions which are still to be answered. And I think the people of Mumbai and all the victims' families from all over the world, I think, need closure on this. What do you think, Bharat Soni Saab? बिल्कुल, I agree with you, sir. And all our leaders, they need to be restrained themselves, and you know the language what they are and what bites they are giving, they should be giving very carefully. But then I cannot say they are the senior leaders. In what context, in what capacity, how they must have said. I today after something like 10, 12 years or 15 years, I am unable to comment on that. But at the same time, sir, if these two girls, what you are referring to, अगर उन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने पुलिस को बताई है, जी बताइए, उसके ऊपर बिल्कुल से, सर, I'll send you the link. मैं आपको लिंक भेजा, इंटरव्यू का लिंक भेज देता हूँ मैं आपको। नहीं सर, I don't deny सर, जब आरकेबी एंड प्रदीप जी से मींस वो पत्थर की लकीर है सर, वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आई एम नॉट सेइंग नो। तो सर ये सारी बातें अभी जो उनको लाया जा रहा था, हुसैन को जब लाया जा रहा है, तो उन्होंने ये सारी बात इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बननी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए। सर हम लोगों ने भी, मेरा एक दोस्त खोया है सर, सैटेलाइट ग्रुप के जो बिल्डर जो थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे उस समय पे पार्लियामेंट्री कमेटी चल रही थी ताज होटल के अंदर। मेरे साथ काम करने वाले ऑफिसर्स वेयर द एस्कॉर्ट्स टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। दे वर इनसाइड द होटल, इनसाइड द ताज। 2 दिन के बाहर निकले थे। तो ये बहुत ही गलत है और ये हमारा बहुत बड़ा एक
सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे तो तो आपके चलेगा। मुताबिक सर मुझे जनाब भरत सोनी साहब, जो हमारे बाकी गेस्ट हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं वेरी शॉर्टली, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा 26/11 के बाद क्या हुआ था। आपको याद होगा, प्रदीप जी आपको भी याद होगा कि एक कमेटी बनाई गई, उसमें कहा गया कि कोस्ट गार्ड को इस तरीके से इक्विप किया जाएगा, पुलिस को इस तरीके से इक्विप किया जाएगा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिलेगी, ये इंटेलिजेंस मिलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। सर आज तक क्या हुआ उसमें? What has happened up till now? We are still exactly where we were earlier. I believe the Mumbai police still needs about minimum 52,000 and according to their wish list over 1 lakh personnel. Sir, क्या है? We are still about 70,000 short in the Mumbai police. As far as Mumbai police equipment also is concerned, training also is concerned. Are we waiting for the next 26/11? What's going on here? I remember, Soni Sahab, Vijay Sahab jo bol rahe, there was one officer also, Ashok Kamte, whom we lost, Yes, sacrificed his life. He was showing the bulletproof vest. His fingers was going through the bulletproof vest. Now that is the way kind of equipments we were buying for our forces, whom we want to fight terror. And By the way, fight terrorism. Pradeep ji, sorry to correct. Bulletproof vest cannot take lathi blow. Sorry to correct you. Yes. That's it. That was a riot vest. Yes. That was a riot vest. It's a vest which was used in rioting. क्या मतलब वो वाली वेस्ट पहनते थे पत्थर के लिए, लाठी के लिए। But sir, वो finger जा रहे तो even जी। for that it is failed there also. अशोक कामटे जी का उंगली उस वेस्ट के थ्रू पार पार हो रहा है तो and there were some brave officers. I remember अशोक कामटे, विजय सालस्कर, विजय अशोक साल- कामटे, yes, yes. हेमंत करकरे, तो ऐसे ऑफिसर्स जब हमारे दिखाते कि- ओम प्रकाश ओमले साहब, Yes. उंगली जो वेस्ट के अंदर से बाहर निकल रहे तो लाठी भी खा नहीं सकते वो वेस्ट और वो बुलेट प्रूफ वेस्ट बना के अब हमारे पुलिस कर्मियों को दे रहे हैं। सोनी साहब, द एक्सटेंट ऑफ corruption where where's the national money interest is going? concerned. Soni साहब, I ask you, you are a citizen of Mumbai, you are a very responsible man. Where's the money going? आपने प्रदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये और राजीव जी सही कह रहे हैं कि वेयर इज द मनी गोइंग। सर देखिए हमारे इतने वी हैव लॉस्ट अवर वेरी गुड ऑफिसर्स सर, ये ऐसे we have lost them in that. And sir, why all the officers were traveling in one jeep, in one vehicle? They should have gone differently. सर उनको मालूम नहीं था सर, मैं आपको बता दूं क्यों। I can tell you why. नहीं भी हो Because I had rushed there. Sir, I had just rushed over there. उनको लगा कि ये कोई गैंग वॉरफेयर है। छोटा मोटा गैंग। अरे नहीं, उनको लगा गैंगस्टर्स में लड़ाई हो रही है, टेररिस्ट अटैक है, किसी को मालूम ही नहीं था। This is what happened. So क्या? I think we've been joined by our friend Mr. योगेश चिले। योगेश चिले साहब कैमरे की तरफ देखेंगे सर। सर इस तरफ देखिए, इस तरफ, लोग किस तरफ सर? बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं सर। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सर जय महाराष्ट्र सर। सर तहावुर राणा साहब को ले आए हम लोग वापस। तहावुर राणा को आ गया दिल्ली। 26/11 का जो प्लानर था वो आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं, ये अभी अभी बात हो रही थी भरत सोनी साहब से कांग्रेस के, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और असल में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबका पर्दाफाश होगा, उन सबको फांसी होगी। क्योंकि 26/11 में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सर। योगेश चिले साहब, अब आप बोले। सर पहली बात तो पूरे प्रशासन का, पुलिस प्रशासन रहेगी, अपनी सीबीआई रहेगी, रॉ रहेगी, जिन्होंने इसमें मेहनत की है तहावुर राणा को लाने के लिए, इस सभी का तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जो आपने अभी कहा कि सभी का पर्दाफाश होगा, आज तक का जो अनुभव है ये बताता है कि पर्दाफाश तो सर किसी का होगा नहीं। हुआ तो राणा को सिर्फ फांसी हो सकती है, लेकिन पर्दाफाश ये किसी का होने देंगे नहीं। अगर होना रहता तो इसके पहले ही हो जाता था सर। क्योंकि देखिए साहब, अभी अभी जो मेरी बात हो रही थी प्रदीप जी के साथ और भरत सोनी साहब के साथ, सर 6 पेंडू 6 कहां से आए? गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से, पाकिस्तान के गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान का तो गुजरांवाला है ना, वो हमारे रिश्तेदारों का गांव है वो सर। इट इज कंसिडर्ड अ सिटी ऑफ रेसलर्स, पहलवानों का गांव है वो। और ये गुजरांवाला शहर से भी नहीं थे, गांव से थे। ये पेंडू अनपढ़ गंवार, इनके पास जीपीएस दिया और इनको 10 मिनट में मालूम पड़ गया किधर जाना है। सर मैं जब मुंबई शहर आया था 1993 में,
आई वॉज स्टेइंग एट द रिट्स होटल में, और मुझको 7 दिन लग गए थे ये पता करने में कि चल के ताज होटल तक कैसे जाते हैं। वेरी फ्रैंकली सर, मुझे मालूम नहीं था, और इन लोगों को 2 सेकंड में मालूम पड़ गया कि ताज होटल इधर है, कामा हॉस्पिटल इधर है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इधर है, ओबरॉय होटल इधर है, छबत हाउस इधर है। सर वो गले से उतरती नहीं है बात। योगेश चिले साहब आप बताएं। सर मेरा तो जन्म ही मुंबई में हुआ है, लेकिन आज भी मुंबई के किसी भी नए इलाके में हम जब जाते हैं 1 जी। साल के बाद, तो हमें वहां के रास्ते पता नहीं चलते, इतनी मुंबई बदल रही है। जी तो हमें भी ये आश्चर्य हुआ था तब कि इन्हें इतने कम समय में कामा हॉस्पिटल कहाँ पे है, जेजे हॉस्पिटल कहाँ पे है, सीएसटी स्टेशन में कहाँ से कहाँ जाना है, बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये सब पता कैसे चले। जी। जो नारायण राणे साहब इतना बोल रहे थे, आज तक नारायण राणे साहब का इंट्रोगेशन हुआ नहीं। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से जो कह रहे थे? जी जी प्रदीप जी। चिले साहब, सबका कहना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट तभी जो रिटेलिएशन होना चाहिए था, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, लोगों को दुखी कर दिया। इनफैक्ट मनीष तिवारी साहब ने एक किताब भी लिखा कि 26/11 का रिस्पॉन्स बहुत दुखदायक था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो क्या बीजेपी का आरोप है एक सॉफ्ट स्टेट, तभी एक सॉफ्ट स्टेट था जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए उतना मजबूत नहीं था? कैसे चिले साहब देखते हो आप इसको? नहीं, कुछ हद तक ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से आज हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, उस तरीके से उस वक्त कांग्रेस के जमाने में उतना रिस्पांस नहीं मिलता था। लोग डरे हुए थे, लोगों को मालूम नहीं था कब किस ट्रेन में बम विस्फोट हो जाए, कहाँ से चलते हुए कौन से रास्ते पे बम विस्फोट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज लोग कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से रास्ते पे घूमते हैं। मैंने पिछले कई सालों से कहीं पे मुंबई में तो बॉम्ब स्फोट सुना नहीं है, जी नहीं। या फिर मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो सकता है, मुझे लगता नहीं। इतना तो बीजेपी गवर्नमेंट को हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इतना कंट्रोल तो टेररिज्म पे और ये बम विस्फोट पे रखा है। दुरुस्त बात। चिले साहब, ये जो बजाज साहब अपनी सोनी साहब से भी डिस्कस किया, तभी एक आरएसएस का प्लॉट चल रहा था। आरएसएस का प्लॉट कि आरएसएस इसके पीछे 26/11 में, उसमें सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी उलझ गए, बोला हाँ ये आरएसएस। दिग्विजय सिंह उलझ गए, बुक लॉन्च में वो भी थे, कृपा शंकर सिंह भी यहां पर लॉन्च किए अजीज बुरनी की किताब की आरएसएस। तो क्या आपको लग रहा है कि अपीसमेंट एक बहुत बड़ा तकलीफ है, एक कैंसर है जो हमारे टेररिज्म के फाइट के खिलाफ एक बड़ा दीवार खड़ा होकर सामने खड़ा हुआ है? इस अपीसमेंट को कैसे देखते हो आप? नहीं, क्या होता है, कांग्रेस के इसी रवैये के वजह से आज बीजेपी पूरे भारत में स्ट्रांग हुई हुई। ये सब कांग्रेस ने जो किया है कि कुछ भी हो जाए आरएसएस को बीच में लाओ, बम विस्फोट हो गए इसके पीछे आरएसएस है, दंगे हो गए इसके पीछे आरएसएस है। ये करने के बजाय ये जो लोग इसके पीछे, उनको अगर वो आगे लाते थे, उनका पर्दाफाश करते थे, तो ये सवाल ही नहीं आता था। आपको लगता है अगर आरएसएस इसके पीछे, तो आपने आरएसएस के जो लोग इसके पीछे थे उनको आगे लाना चाहिए था, जो कांग्रेस को जमा नहीं हुआ नहीं। इसका मतलब ही ये हो गया कि उनका हाथ नहीं था इस चीजों में। बार बार ये जब वो बोलते रहते थे कि आरएसएस इसके पीछे, पूरा हिंदुत्ववादी जो वोट था वो एक साथ हो गया और इनको 2014 में उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। योगेश चिले साहब, एक सवाल है आपसे, जरा ध्यान से सुनिए। पता नहीं आप इस पे रिप्लाई करना चाहेंगे या नहीं। एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब हैं, भरत सोनी साहब सुनिए। बिल्कुल सर। एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब हैं सर, उनके साहबजादे, जो एक और शख्स जो है ना डेविड हेडली, जो कभी वापस आने वाला नहीं है हिंदुस्तान, बिकॉज ही इज अ सीआईए एसेट, उनको लेकर के वो हर जगह पर गया, हर जगह की तस्वीर ली, रेकी उनके साथ करी, और उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड। संजय दत्त के खिलाफ जो एविडेंस थी वो उतनी भी नहीं थी, और संजय दत्त को 7 साल की जेल हो गई। इन हजरत को 1 दिन की भी जेल नहीं हुई सर, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, वैसे ही छोड़ दिया, उसको एक्यूज भी नहीं बनाया।
योगेश चले साहब, ये क्या है, अब आप बताएं। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं सर कि अगर ये जो पीछे थे इनका पर्दाफाश तभी कांग्रेस ने किया रहता तो कांग्रेस को 2014 में जो डिफीट मिली वो नहीं मिलती थी जी जो आज बीजेपी कर रही है। आपने देखा कि एक हमला हो गया तो हमने उसका जवाब कितने जोर शोर से दिया। जी हाँ। यही जवाब अगर उस वक्त कांग्रेस देती, जो लोग इसके पीछे उनको सामने लाती, उनका पर्दाफाश करती, तो कांग्रेस को 2014 में हार का सामना नहीं करना पड़ता था। सर, इज दैट ट्रू? भरत सोनी साहब, आप बड़े सॉफ्ट थे, आपको लगता है क्या, या सर, बहुत soft रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उस थे? टाइम सर, पे- या बहुत बैलेंस थे? दोनों में से एक उस चीज, टाइम पे- अब आप बोले। राजीव जी, उस जी। टाइम पे क्या था, देश के सामने जो विषम परिस्थितियां थी 2008-9 में, आप अगर देखते तो उस समय देश की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी बड़ी मुश्किल से जा रही थी और वर्ल्ड रिसेशन चल रहा था। और उस वर्ल्ड रिसेशन में लेहमैन ब्रदर्स जैसे लोग डूब गए थे। हाँ, और सर, लेकिन हमारे देश में एक भी जॉब लॉस नहीं हुआ, रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ, किसी को भी नौकरी से हाथ धोने नहीं पड़े। तो देश के उस समय की सरकार, एक तो वो 2-3 10-12 पार्टियों के इसके ऊपर टिकी हुई सरकार थी और उस प्रकार से उस समय पे ज्यादा ध्यान देश की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने पे था। ये गलती हुई है सर, मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं हुई है, लेकिन अगर हमको कहना कि ये अगर उस समय पे हम लोग करते और होता तो आज ऐसे नहीं होता और हम लोग 14 में हारते नहीं। 14 में जिस प्रकार से झूठा प्रचार किया, देखिए, जो स्कैम, आईटी स्कैम और जो टेलीकॉम स्कैम का जो बातों की गई, वो सारा का सारा था ही नहीं, पूरा झूठ था। वो स्कैम हुआ ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएजी ने माफी मांगी है। और सर, 300 किलो आरडीएक्स, जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पर कश्मीर में 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से? और उतनी बड़ी बटालियन को वहां से मूवमेंट के लिए परमिशन किसने दी? उनको क्यों प्लेन नहीं दिया गया? ये सारी बातें भी तो वो आप मेरे पे आरोप करेंगे तो मैं भी काउंटर आरोप कर सकता हूं, लेकिन सर, इसमें आरोप की बात नहीं है। नहीं नहीं भरत सोनी साहब, एक सेकंड, मैं आप ही की बात करने वाला हूं। 2008 में 26/11 हुआ और 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार वापस आई। अगर ये बात अगर करनी है तो 2009 यू वन द इलेक्शन, लेट्स बी वेरी क्लियर। सो इट इज नॉट एज इफ what you did and what you did not do with regard to 26/11 had any bearing on the on the result of the elections. So let's not go there. All I'm saying is you should have been harder. All I'm saying is at that time Mr. Chidambaram and everybody else should have insisted कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए, जो भी गिल्टी है गुनहगार है, irrespective of whoever he is, hang him. That's it. We should not allow this to happen. That's what should have been the attitude, sir. भरत सोनी साहब, अब आप बताइए कि आप मेरे साथ सहमत हैं कि नहीं, बोलिए। सर, सहमत हूं आपसे सर। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गलतियां हुई है, लेकिन जी। उस समय पे प्रायोरिटीज जो थी, वो प्रायोरिटीज के हिसाब से इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जी। और अभी अगर वो अभी आगे सब देखिए, 2008 से जो बातें चल रही है उसको आज हमको सक्सेस मिला है। जी। तो कोई ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये इतने साल क्यों लगे, इतने साल हम लोग जो इतने टफ थे। 2014 से तो एकदम टफ गवर्नमेंट थी, बिल्कुल उनको घर में से बाहर निकाल के लाने वाली सरकार थी, तो आज तक क्यों नहीं लाया? क्यों इतने साल लगे 2014 से भी? But Bharat Soni ji, one thing is there, वो appeasement. If you take one more case before that, Ishrat Jahan wale case. Ishrat Jahan was a noted elite operative, confirmed later on by the Headley himself, by various agencies including the NIA, CBI, सब लोग ना ultimately. मगर उससे पहले जो आपने एक हरीन दिखा दिया उनका घर में जाके पैसे देने के लिए. Now this is what we call national interest or appeasement. उससे कब तक हम इससे जूझते रहेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि ये terrorist is a terrorist irrespective of any religion. Why should we bring religion in that? Soni साहब, और कंटिन्यूस हम इस चीज को देख रहे हैं। Pradeep ji, there was nothing like appeasement or religion into that. See, at that time, Ishrat Jahan case also, there are so many, different versions also coming up. See, there are the fake encounter version is also coming up. We are not going into that. Sir, let the investigation agencies investigate and come clean on that. If there is hang the people who are involved.
करेक्ट, एब्सोल्युटली। वी वेलकम मिस्टर मुकेश गांधी। मुकेश गांधी साहब हमारे बड़े पुराने मित्र, कश्मीर से वापस आए हैं, और क्या हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं वो तो मालूम नहीं है, लेकिन कश्मीर से आए हैं वापस। मुकेश गांधी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपको महावीर जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको सबको। तो सर, आप सबको बधाई, आपको भी, योगेश चिले साहब को भी और भरत सोनी साहब को भी, तीनों को एक बार फिर बधाई कि 26/11 का जो मेन प्लानर था, हाफिज सईद, एक तो हाफिज सईद वगैरह थे, और उसके अलावा ये जो मिलिट्री का जो आदमी था, जो मेन प्लानर था 26/11 का, वो वापस हम लोग सफल हो गए हैं उसको 17 साल के बाद भारत लाने के लिए, ताकि भारत में उसका ट्रायल चल सके। एंड आई होप वी आर एबल टू हैंग हिम। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको फांसी की सजा होगी। तो आप इसको कैसे देखते हो सर? जरा अपने पहले कमेंट जरा दें तहावुर राना की एक्स्ट्रेडिशन जो हिंदुस्तान में हुई है उसके लिए, बोलिए सर। सर, ये बहुत नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने ट्रंप के सहयोग से या अपनी एजेंसियों के माध्यम से ये जो काम किया है और इनको देश में लाए हैं, ये इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये मोदी है तो मुमकिन है, बाकी कांग्रेस होती तो अगले 25 साल तक भी ये हो नहीं पाता था, क्योंकि उनका रवैया आप देखिए कि जब ये हमला हुआ, जब ये वारदात बंबई में बनी, तब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख थे, आर पाटिल होम मिनिस्टर थे, और उनका रवैया, विलासराव देशमुख अपने लड़के को, हीरो को साथ में लेकर के अपना फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल को लेकर के वहां दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, आ जाइए देखने के लिए। कांग्रेस को उस वक्त का आप रवैया देखेंगे तो उनको कोई इसका दुख नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। आर पाटिल भी जब बोल पड़े कि ऐसी छोटी छोटी घटना तो होती रहती है, इनके ऊपर उनको राजीनामा भी देना पड़ा आखिर में। तो कांग्रेस का पूरा कल्चर जो था वो इनके सपोर्ट में था। ऐसे लगता था कि जैसा कांग्रेस इनके पीछे मिली हुई है, और इसको आतंकी ये बनाने के लिए भी शरद पवार जी ने भी थोड़ा अप्रोच किया, थोड़ी बातें की, डायलॉग लगाए, पर कुछ हुआ नहीं। तो आज जो मोदी जी ने काम किया है वो बेनमून है। इतना जबरदस्त काम किया है कि मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर और सभी ये जो आपके कल्प्रिट, ये एंटी इंडियन है, जो देश में आतंक फैलाना चाहते थे, दाऊद से लेके याकूब सईद होगा, जो भी होंगे, वो सबको नरेंद्र मोदी जी लाएंगे। तब देश के लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, और एक दहशत पाकिस्तान में और आतंकवादियों में फैलेगी। जीरो टॉलरेंस। हम हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ एक शेर बैठा है, वो आवाज करता है तो सबकी आवाज बंद हो जाती है। जीरो टॉलरेंस टू टेरर। मुकेश गांधी साहब, नए गवर्नमेंट का काम है जीरो टॉलरेंस टू टेरर, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर इज कंसर्न। चिले साहब के अभी जिक्र कर रहे थे मनसे से, बोले कि पहले भय का वातावरण था, कहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा, कौन सा ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जाएगा, कौन सा सड़क पर बम फूटेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या एक जीरो टॉलरेंस या वॉर ऑन टेरर जैसे इस गवर्नमेंट ने किया? और कांग्रेस के सीनियर लीडर से, सोनी साहब से वही कह रहा था। मनीष तिवारी ने साहब ने खुद एक किताब लिखा, 26/11 में हमारा लूकवार्म रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स जो देश चाहता था वो हुआ नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? अपीसमेंट इज अ बिग फैक्टर, गांधी साहब। हाँ, देखिए, वो तो बात आपकी एकदम सही है ना, कि कांग्रेस का रवैया पहले से एक प्रकार के वर्गों के लिए उनका तुष्टीकरण करना, उनको खुश रखना, और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का जो ये मुसलमानों का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। जैसे वक़्फ़ के अंदर भी आप देखेंगे कि उन्होंने कितना जबरदस्त ये किया, रिलीजियस एक्ट को भी हमारे तोड़ दिया। माने सब तरह से हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की कांग्रेस ने आजादी दिलाने में मदद की, पर आजादी के बाद में इस देश की यंग जनरेशन को अपनी कल्चर के साथ ज्वाइन करना चाहिए, संस्कृति के साथ जोड़ना चाहिए, देश की अस्मिता के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इनकी जगह
इन्होंने डाइवर्जन इतना खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदू लोग डरते थे। राम मंदिर बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो ये जो पूरी जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आज मोदी जी के कारण ये सब यकीन हुआ है, मुमकिन हुआ मुकेश है। गांधी साहब, सवाल है आपसे एक छोटा सा। उनका एप्रिसिएशन करता हूँ। राइट, वंडरफुल। सो मुकेश गांधी साहब, आपसे एक सवाल है, जो आप क्योंकि जरा लेट ज्वाइन किए, तो ये बात हो चुकी है योगेश चिले साहब से भी और भरत सोनी साहब से भी कि 26/11 की इन्वेस्टिगेशन में देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच रिमेन। फॉर इंस्टेंस, 6 बेवकूफ टेररिस्ट अनपढ़ लोग आ गए गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के पाकिस्तान से, और उन्होंने किसी ने उनको जीपीएस दे दिया और उसके हिसाब से उनको मालूम पड़ गया कामा हॉस्पिटल कहाँ है, छबद हाउस कहाँ है, ओबेरॉय होटल कहाँ है, ताज होटल कहाँ है, सब कुछ मालूम पड़ गया उनको। सर, मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ता है, आज तक जो वो क्या गूगल मैप जो है वो पढ़ के मुझे आज तक मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये इतने इंटेलिजेंट थे, इनको सब कुछ मालूम पड़ गया। और उसके बाद खबर आई जो हम लोगों ने ब्रेक करी थी उस वक्त 2008-2009 में, वी ब्रोक दैट न्यूज राइट हियर दैट देयर वर 2 गर्ल्स। वो उन्होंने खुद एडमिट किया और पुलिस को भी स्टेटमेंट दी कि इन लोगों के साथ तो हमने पार्टी करी है 4 या 5 दिन, तो मतलब 5 के 6 दिन पहले ये लोग यहां पर थे। तो मुकेश गांधी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उस केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये मालूम पड़ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके कुछ लोग यहां पर पहले से ही थे जिनकी मदद से इन लोगों को गाइड किया गया कि कहां पर आपको कब जाना है और क्या कैसे करना है। अब आप बताएं सर, मुकेश गांधी साहब। राजीव जी, आपने एनालिसिस परफेक्ट की है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं। बाकी जब वो ताजमहल होटल में गए जी, और वहां जब ऊपर से उनको अपने ऊपर से इंडिकेशन मिलता है कि पाकिस्तान का टीवी चैनल उनको गाइड करता है कि यहां जाओ, वहां करो, ये करो, वो करो, उनके पास इंफॉर्मेशन आती रहती थी। वैसा मैंने आज कुछ चैनलों के ऊपर देखा जी। तो इन लोगों को ब्रीफिंग देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा मुसलमान वर्ग बहुत ही ऑनेस्ट है, पर कुछ मुस्लिम लोग ये आतंकवादियों के साथ अपने पैसे के इंटरेस्ट के लिए, अपने मजहब के नाम के फैनेटिज्म से मिल जाते हैं, इसीलिए आतंकवाद पनपता है और आतंकवाद अपना काम करके जाता है। आप देखो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, सर जर्नलिस्ट को मत भूलिए मुकेश गांधी साहब, कुछ जर्नलिस्ट को मत भूलिए, कुछ जाने माने पत्रकार भी थे जो सारी इंफॉर्मेशन ताजमहल होटल के सामने खड़े होकर दे रहे थे कि एनएसजी कमांडोज यहां से घुस रहे हैं और इधर से जा रहे हैं। पूरा ये सारा विवरण करने की अभी जरूरत नहीं है, पर ये आपने जो पॉइंट लगाया है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन फिर से डिटेल में शुरू होना चाहिए। और जो कल्प्रिट खाली एक फॉरेन से ला करके इनको राणा को दिखा दिया, ये नहीं चलेगा। पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके लोकल लोग भी कौन इन्वॉल्व थे और कहां का ग्रुप इसके साथ इन्वॉल्व था, लश्कर तैयबा था, ये था, वो तो सब पाकिस्तान के हो गए। और हिंदुस्तान के अंदर, बंबई के अंदर कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन से पॉलिटिशियन कांग्रेस के या कोई भी पार्टी के होंगे, वो उनके साथ में कौन इन्वॉल्व था, इनको भी एक्सपोज अगर कर सकती है ये गवर्नमेंट, तो मैं ये गवर्नमेंट को सैल्यूट करूंगा। नहींतर तो मैं सोचूंगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्लैमर लेने के लिए राणा का लेके आए और सब उनको सजा दे दी। कल फांसी की सजा देने में भी और 6 महीना निकालेंगे और मैटर यहाँ लोगों को भुला देंगे। पर लोकल लोगों को जब तक दहशत नहीं आएगी ना, तब तक ऐसी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में चलती रहेगी आगे जाकर, ऐसा मुझे लगता है। लगातार हम लोग महाराष्ट्र में भी एक प्रकार से देख रहे हैं, नेशनल जहां नेशनल इश्यूज है वहां से शाह बानो हो, ट्रिपल तलाक हो, आर्टिकल 370, राम मंदिर, महाकुंभ, वकाफ रिफॉर्म्स, सीए, तो अलग अलग हमने देखा कि इंडिया अलायंस एक स्टैंड लेती है और एनडीए का एक स्टैंड है, और जो टोटली विपरीत है, टोटल विपरीत है। महाराष्ट्र में भी जैसे हमने नागपुर रॉयट्स देखा, जिस प्रकार से बुलडोजर चला, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी दैट? ये क्या बुलडोजर चलना, बिकॉज राज ठाकरे साहब एकदम क्लियर है, जहां गलत है वो गलत है, उसमें कोई हाउ डू यू सी द पॉलिटिक्स इरप्टिंग? महाराष्ट्र में किस प्रकार से ये सब इरप्ट हो रहा पॉलिटिक्स? देखिए, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स चिले साहब, गांधी साहब, चिले साहब, आई विल कम बैक टू यू। चिले साहब बोलिए।
सर हम तो चाहते थे कि जो जो दंगाई है उनके घर पे बुलडोजर घूमना चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया और वहां पे दंगाइयों को दहशत लगाई, वही दहशत महाराष्ट्र में लगनी जरूरी थी। क्योंकि जिस तरीके से दंगे अभी प्लान हो रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसको अगर जवाब देना है तो क्योंकि जो दंगे करते हैं वो ये सोचते नहीं कि हम जो दंगे करें उसके वजह से किसी की फैमिली अड़चन में आने वाली है। अगर उसकी फैमिली अड़चन में आती है तो जो दंगे करते हैं उनकी फैमिली भी अड़चन में आनी बेहद जरूरी है। वो अगर घर से निकाले जाएंगे तो ये भी घर से निकाले जाना जाना बेहद जरूरी है। इसलिए इस बार महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है हम उसके साथ है, ये होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। जी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ महाराष्ट्र में स्थिति सुधरेगी? चिले तो साहब, सुधरना चाहिए। महाराष्ट्र एक कल्चर स्टेट है। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी है। हम मुस्लिमों को हम तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों के तरफ से भी हिंदुओं के लिए भाईचारा रहे। वो अगर नहीं रहता है और जो दंगा करने यहाँ पे आते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए जो आज तक नहीं मिलती थी। जी। आप कितने भी केसेस डालिए, केसेस लड़े जाते हैं, वकील खड़े किए जाते हैं, रात को खोले जाते हैं, उनके बाजू से कोर्ट का जजमेंट भी दिया जाता है। ये सब रुकना है तो आप ऑन द स्पॉट एटलीस्ट उनको दूसरी कोई सजा नहीं दे सकते, तो उनके घर पे बुलडोजर घूमना बेहद जरूरी है सर। राइट, भरत और सोनी इसका साहब। असर होगा, जी, जी, ये ओके। असर हो रहा है सर। जी, चिले साहब, राज साहब ने हिस्ट्री, उन्होंने कहा इतिहास हो गया तभी औरंगजेब के, उन्होंने जो टोम निकालने वाली बात है वहां वो थोड़ा डिफर हुए थे देवेंद्र फडणवीस जी से। बिकॉज फडणवीस साहब ने कहा कि टोम की क्या जरूरत क्या है, एएसआई प्रोटेक्टेड है इसलिए में। बट विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गए, ये सब चाहते थे कि औरंगजेब के वो टोम हटा जाए। तो राज साहब का व्यूज कुछ और था, बोले इतिहास को जानिए, आप इतिहास को पढ़िए, उसमें थोड़ा रोशनी डालिए चिली साहब। सर इतिहास जो है वो आप मिटा नहीं सकते। जो इतिहास में हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जो आपके बाजू में हो या आपके विरोध में। वो बात हो गई है, वो घटना अभी निकल गई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हम राजनीति करने जाते हैं और हम हमारे इतिहास को ही बिगाड़ देते। अभी जो औरंगजेब पूरे उत्तर भारत में सभी राजाओं को हरा के सबको गुलाम बना के महाराष्ट्र में आया था, यहाँ का एक विचार छत्रपति शिवाजी महाराज का मिटाने के लिए यहाँ पे आया था। लगभग 7 से 8 लाख की सेना लेके जो यहाँ पे आया था, उसको इस महाराष्ट्र से 25 साल तक महाराष्ट्र मराठों ने बाहर जाने नहीं दिया और उसका मृत्यु यहीं पे हुआ है। ये दिखाने की जो चीज है वो हम उखाड़ना चाहते। तो माननीय राज साहब ने क्या कहा कि औरंगजेब की जो कब्र है वो उखाड़ने से अच्छा है वहां पे एक बोर्ड लगा दीजिए और उस पे लिख दीजिए ये वही औरंगजेब है जिसने यहाँ के लोगों पे अत्याचार किया, जिसने यहाँ के मराठों को मारना चाहा, उसे मराठों ने यहीं पे मारा, गाड़ दिया। तो अपना जो इतिहास है वो छुपाने की जरूरत नहीं है, वो मिटाने की जरूरत नहीं, वो दिखाने की आवश्यकता है। ये आपके शौर्य का इतिहास है। वो औरंगजेब की कब्र मिटाने से आपका इतिहास मिटेगा नहीं, वो दिखाने की जरूरत है। तो हम इतिहास को किस नजरिए से देख रहे हैं ये बेहद जरूरी है। दुरुस्त बात। उसको हम राजनीति पोलिटाइज करने जाएंगे हर वक्त तो आपका इतिहास जो पाकिस्तान में है, कट्टरपंथी इतिहास लिखा जा रहा है, क्या जरूरत है भारत में ये सब करने की? हमारा इतिहास अच्छा है, वो उजागर करने की आवश्यकता है, इतना ही हम जी, यहाँ पे कहेंगे। करेक्ट। Bharat Soni Saab, you heard Mr. Mukesh Gandhi, and you also heard Mr. Yogesh Chile. I think we've just lost the connection with Yogesh Chile Saab. Can we get him back, please? जी, Bharat Soni Saab, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? You want to react to that, sir? सर देखिए, ये सारा जो औरंगजेब वाला मामला जो लाया गया था जी। उस टाइम पे लोगों का ध्यान भटकाना था, क्योंकि जिस समय पे सेशन था महाराष्ट्र असेंबली का, बजट सेशन। महाराष्ट्र जी। असेंबली के अंदर का वो जो ध्यान था वो भटकाने का था लोगों का, जी। क्योंकि इनके पास कहने लायक कोई चीजें थी नहीं। लाड़की बहन का 1500 से 2100 हो नहीं रहा है, किसानों का कर्जा माफ करने का था वो हो नहीं रहा है,
अजीत दादा पवार जी ने कह दिया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा और आपको पैसा भरना, आप 31 के पहले जाके पैसा भर दीजिए। सर ये सारी बातें को ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब वाला मुद्दा लाए ये लोग। और सर क्यों नहीं, सर इनका होम मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनका होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, क्यों नहीं टिकाऊ और फावड़ा लेके चले गए और छोड़ दिया उसको? छोड़ देना चाहिए था ना सर। सर अगर इनको चाहिए था कि भाई औरंगजेब का इसको मिटाने का है, टोम को, हाँ औरंगजेब का जो टोम है वहां पर उसको मिटाना है, तो चले जाते हैं लोग। सर इनका ही सब कुछ है। जैसे अभी कुणाल कामरा के केस में जाके वो जो तोड़ फोड़ करके चले आए, तो कौन किसी ने क्या कर लिया उसको? सर वैसा ही वहां के जाके फोड़ देना था वो। सर कितने रोका था इनको? लेकिन इनका मूल मुद्दा जो था सर, वो नहीं था, औरंगजेब नहीं था। औरंगजेब का नाम आगे करके वो इनकी जो विफलताएं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर जो सेशन हुआ, उस सेशन के अंदर बजट के अंदर प्रावधान नहीं कर सके किसानों का। मैं फिर से वापस रिपीटेशन, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सके। मैं आपको सोनी साहब, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। अपीसमेंट फिर निकल, वकफ रिफॉर्म बिल, ठीक है, आपने विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध कर दिया, आप कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, बोले कि इस चीज को मींस रद्द कर दो। बट आप अपने एआईसीसी के जो गुजरात में हुआ वहां पर भी आपने कह दिया कि विल इफ वी कम टू पावर विल रिवोक दिस वकफ बिल। तो कहां तक क्या जरूरत है? आई मीन इज इट सो एसेंशियल कि वकफ बिल को आप रद्द कर दो इफ गवर्नमेंट कम्स टू पावर? दिस इज नॉट अगेन अपीसमेंट। कैसे चलेगा? बीजेपी से देश संविधान से चलेगा, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो सोनी साहब। सर बिल्कुल संविधान से चलेगा। वक्फ बिल के ऊपर जो स्पेशल होम जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग 2023 से चल रही थी, 5 मीटिंगें हुई। उस मीटिंग की कमेटी के सामने और जेपीसी के सामने एक बार भी बात आई कि वक्फ को अमेंडमेंट करना है? सर वो नहीं आई बात। अचानक से अमेंडमेंट ले आए। तो अमेंडमेंट ले आके इनको एक कम्युनिटी को डराना है कि भाई ये नहीं होगा। तो सर उसके अभी तो पास हो गया वो सर, अभी लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा के अंदर भी पास हो गया। और ये जो बातें कही है कि चेंज करने वाली बातें हैं, वो प्रमोद तिवारी जी जो हमारे नेता है यूपी से, उन्होंने ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि एक बार ये हो जाने दीजिए, और अगर हमको लोग सत्ता पे लाते हैं तो हम लोग इसमें संशोधन करके जो जो चीजें बदली करना है उसको बदली करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा वक्फ बिल वोट से सर, क्योंकि 2013 के अंदर जो कमेटी ने पटल के ऊपर रखा था कि वक्फ के अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, वो तो इन लोगों ने लागू किए नहीं। 2014 से सत्ता पे है, 2025 तक वो लोग जो 2013 में जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था वो क्यों नहीं लागू किया? वो नहीं लागू किया। But the most important point, Bharat Soni Saab, even more important than this. I am very glad that Mukesh Gandhi Saab said, Mukesh Gandhi Saab, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड सर। भरत सोनी साहब जरा ध्यान से सुनिए। 2013 में जो अमेंडमेंट आया जिसकी वजह से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, वक्फ बाय यूजर, जिसकी वजह से तमिलनाडु के एक 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, हमारे मुंबई के मोहम्मद अली रोड की मीनारा मस्जिद को वक्फ डिक्लेयर करने की जरूरत की गई, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया उसको। उन्होंने कहा कि वो मीनारा मस्जिद ट्रस्ट का ही है, यू वक्फ हैज नो राइट ओवर हियर एंड सो ऑन। सर 2013 का जो बिल था, बीजेपी डिड नॉट अपोज इट। बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया था सर। मिस्टर अरुण जेटली इन राज्यसभा एंड सुषमा स्वराज जी इन लोकसभा, दे डिड नॉट अपोज द 2013 अमेंडमेंट, जिसको लेकर के आज ये अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। भरत सोनी आप बोलिए, उसके बाद मैं मुकेश गांधी साहब के पास जाऊंगा। जी बोलिए। वो वही आ रहा हूं सर। अच्छा हो गया आपने राजीव जी, अच्छा हो गया आपने ये बातें निकाली। सर 2013 में क्या रिकमेंडेशंस थे? वामसी पोर्टल के ऊपर सारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज को कंप्यूटराइज कर देना है और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है। और उसके बारे में लोकसभा के पटल के ऊपर शहनवाज हुसैन जी ने स्टेटमेंट दिया है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 33,148
जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्यूटराइज हो चुकी और वामसी पोर्टल पे पोस्ट हो चुकी है। अब जब इतना सारा है तो फिर अभी फिर से आप वक्फ बोर्ड लाके आके फिर से उनको 6 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टीज के डिटेल बताने की क्या बात हुई? राइट, सो लेट्स गो अक्रॉस टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड के बारे में जो भी संशोधन हुए हैं जी। वो संशोधन सही हुए हैं। सब मीटिंगें होने के बाद में ये जब लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, इसके ऊपर लंबी मिडनाइट तक सब चर्चाएं हुई, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, फिर भी कांग्रेस की दानत इतनी ये है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जैसे हिंदूवादी संगठन से लेके कई लोगों को उकसाया और पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने रखी नहीं, और ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हम वापिस आएंगे तो सुलटा देंगे, उल्टा देंगे। अभी आप देखो कि सच्चर कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अंदर भी पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा योजना था। उनकी 6-7 कलम तो आप पढ़ेंगे तो आपको धक्का लगेगा, आपको जर्क लगेगा कि इतना मुस्लिमों का तुष्टीकरण। अरे मुस्लिम हमारे भाई है, पर इसके मतलब में आप मुस्लिमों के अंदर जहर घोल दो और हिंदू मुसलमानों के बीच में एक विसंवाद करके अपनी सरकारी रोटी सेकने का काम करोगे तो ये गलत है। अब बात यह है कि औरंगजेब का जो राज ठाकरे जी ने जो सॉल्यूशन दिखाया वो सॉल्यूशन प्रशंसनीय है कि वहां एटलीस्ट अभी इमीडिएटली एक बोर्ड डालना चाहिए कि औरंगजेब ने क्या यहां अत्याचार किया था और किस तरह से हमारे मराठा शिवाजी महाराज जी, संभाजी महाराज जी ने और हमारे मराठा लोगों ने इनको कैसे रुकवा के यहां रख दिया और औरंगजेब का अंत किया और बाद में मुगल सल्तनत का धीरे धीरे अंत होते गया। तो ये बात का बोर्ड इमीडिएटली बना करके वहां लोगों के पास रखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो गौरवान्वित इतिहास है मराठों का वो भी औरंगजेब की साइट के साथ में अटैच करना चाहिए। ये प्रस्ताव मुझे राज ठाकरे जी का अच्छा लगता है और इसका इमीडिएटली अमलीकरण होना चाहिए। गांधी साहब, यू गॉट अ ब्रूट मेजॉरिटी महाराष्ट्र में, आपका ब्रूट मेजॉरिटी है महायुति का, और इस ब्रूट मेजॉरिटी का नाजायज फायदा आप उठा रहे हो। सुप्रिया सुले जी को आंदोलन पर बैठना पड़ा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, 1.5 किलोमीटर रोड कंक्रीटाइजेशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बारामती में नहीं हो रहा था, सुप्रिया सुले को आंदोलन पर बैठना पड़ा। और दूसरा जो है बदलापुर एनकाउंटर, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने पुल अप किया है, भले उस वक्त जब एकनाथ शिंदे जी सरकार था एंड इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, पीपल हैड अ साइ ऑफ रिलीफ कि क्विक जस्टिस हो गया, बट हाई कोर्ट हैज पुल्ड अप एंड यू आर नॉट आंसरिंग द हाई कोर्ट एट ऑल। तो ये एक्सेसेस जो जीते हैं लैंडस्लाइड, तो यू आर बिकम वेरी एरोगेंट मुकेश गांधी साहब। नहीं सर, इसमें एरोगेंसी की कोई बात नहीं है। सुप्रिया जी हमारी बड़ी बहन है, हमारी बहन है छोटी, और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें अगर रोड नहीं हुआ है, वो लोकल कॉरपोरेशन का काम है, तो वो तुम अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेकर के वो रोड रिपेयर करवा सकती हो। उसको खाली एक ये करके उसको ब्रॉडकास्ट करके मीडिया के पास जाके बताते हैं कि ये गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, अजीत पवार सर वो 6 महीने से कोशिश कर रही थी मुकेश गांधी साहब। अरे बैकग्राउंड सुन लीजिए ना सर, अगर कोशिश करती है, बैकग्राउंड सुन लीजिए। सुप्रिया जी को सक्सेस नहीं मिले ये बात में कोई दम नहीं है सर। करेक्ट, आई एग्री विद यू, दैट्स व्हाट आई थॉट सर, आई एग्री विद यू, दैट्स व्हाट आई थॉट। मैं आपसे एग्री करता हूं, यही सोच मेरी भी थी, लेकिन वो सच बोल रही हैं सर। जेन्युइनली वहां के जो कॉर्पोरेशन के लोग थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको हंगर स्ट्राइक में बैठना पड़ा। अरे कोऑपरेशन क्या, अरे बम्बई में मुझे एक फोन करती थी तो मैं 6 महीने में 1 महीने में काम करवा देता तो सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके, अगर आपकी इतनी इन्फ्लुएंस है, एक मिनट, अगर आपकी इतनी इन्फ्लुएंस है, बात सुन लीजिए सर जुहू तारा रोड के पास, सर जुहू तारा रोड पे अभी जो काम चल रहा है उसको फटाफट कंप्लीट करा दो ना सर। 6 महीने में चौथी बार तोड़ा है इन्होंने, तो आप वही करवा दीजिए, चौथी बार टूटा है। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब। है कि लोकल लोगों का पूरा मेमोरेंडम जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उनके पास जाना चाहिए, उसकी कॉपी सीएम के हाउस में जानी चाहिए
तो इमीडिएटली उसका रेक्टिफिकेशन आपको 10 दिन के अंदर मिलेगा। ऐसा मैंने अभी 2-3 जगह ऐसा काम रुका हुआ था, लोगों को हड़बड़ होती थी, तो मैंने जो प्रकार से सर वो तो कंप्लेंट पूरी करवाई, मुंबई में हो रहा तो है सर, उसका अभी मुंबई rectification हुआ है में सर। एक रास्ता ऐसा नहीं है जो खुदा हुआ नहीं है सर। इसका कारण सब है, बढ़िया सड़क इसका- सर, अभी अभी बनी हुई सड़क, रोड विच हैज बीन मेड जस्ट नाउ, उसको तोड़ करके दोबारा बना रहे हैं सर। क्या वो तो सर? अभी ये देखो, ये तो क्या है, कंक्रीटकरण करने का जो अभियान चलाया है शिंदे जी ने, उसका परिणाम है। मैं सर शिकागो में गया था आज से 2 साल पहले, मैंने वहां भी देखा कि वहां भी इतना रोड का काम चलता था, इतनी तोड़फोड़ चलती थी कि जो एयरपोर्ट से मेरी डॉटर के घर पे आने के लिए हमको खाली आधा घंटा लगता था, वहां हमको 1.5 2 घंटा तक योगेश रुकना चिले पड़ता साहब था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? योगेश हमारे चिले हमारे साहब आप हमारे बताइए। बम्बई में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए सरकार सर, के खिलाफ- बोलिए। सरकार के खिलाफ भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कॉरपोरेशन, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, ये सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करके तोड़फोड़ का काम होना चाहिए। और मुझे तो अभी लगता है कि हर जगह में, एरिया में एक मोहल्ला कमेटी अभी बनानी पड़ेगी हम लोगों को, और हमारे यहाँ काम करने से पहले हमारी ये मोहल्ला कमेटी की परमिशन लो, फिर ये रोड का चालू Right. करो। योगेश क्योंकि चिले साहब, इससे बहुत बोलिए। मैस हो गया है, बहुत योगेश मैस चिले हो गया है। साहब, ये अच्छी भली सड़क को तोड़ करके दोबारा जो बनाया जा रहा है, तीन वो तीन गलत बार, है। चौथी बार, योगेश चिले साहब ये क्या है? चिले साहब बोलिए ये- सर। ये- सर लेट योगेश चिले साहब स्पीक, बोलिए सर। नहीं सर, ये सर नहीं बताया। मैं जिस पनवेल में रहता हूँ, जी वहां पे महानगर गैस कंपनी जब भी महानगर पालिका रोड बनाती है, ये आते हैं और खोद देते हैं। जी और ये आज नहीं, ये पिछले 2 सालों से शुरू है। जब हम महानगर पालिका को पूछते हैं कि आपका और उनका कुछ कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, तो बोलते नहीं, हाँ। उनका तो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो उनको हमें परमिशन देना पड़ता है। अरे इतनी बार रोड बनाए और इतनी बार खोदे, मैं रास्ते पे बैठ के मुझे अभी कंटाल आने लगा है, मैं कितनी बार रास्ते पे बैठूं इनके खिलाफ। नहीं, तो ये सर, अगर पनवेल जैसे छोटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये बातें चल रही है, तो आप सोचिए मुंबई में कितने बड़े पैमाने पे ये सब चीजें चालू है। जी चिले सर, ये साहब, पूरे सब पार्टियां चिले मिली हुई है साहब, भैया, चिले साहब, सब आज पार्टियां। आज इसमें कोई प्रताप किसी सरनाइक, को, सरकार को कोई अभिनंदन देने लायक बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन करना ही चाहिए। मैं चिले साहब, प्रताप सरनाइक ने कंप्लेन किया कि अजीत पवार जी फाइनेंस के बारे में कुछ करे, एसटी बसेस, एसटी पेमेंट वो नहीं हो रहा है, और जब तक आप फंड रिलीज नहीं करोगे तो पूरे एवरीथिंग डामाडोल में है। और प्रताप सरनाइक ने खुलेआम सरकार के खिलाफ एक विद्रोह प्रकार से बात की है। इस चीज को कैसे देखते हो? क्या लाड़की बहन, ये स्कीम, वो स्कीम, पूरे बजट को डामाडोल कर दिया? चिले साहब, किस प्रकार से देखते हो आप? सर, हम तो पहले से लाड़की बहन योजना, ये जो लाडली बहन योजना बता रहे हैं, इसके खिलाफ है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन किसी के उपकारों पे जिए। आप उसको काम दीजिए और उसके काम का आप पैसा दीजिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का 60,000 70,000 करोड़ रुपया इस योजना के पीछे लगा है, उससे अच्छा जो एसटी कर्मचारी हम इनको 4-4 5-5 साल से ये हर महीना इनका पगार का सर प्रॉब्लम्स रहते, कभी कभी 3-3 महीने इनको पगार दिए नहीं जाते। आप शिवनेरी की अवस्था देखिए, लालपरी की अवस्था देखिए, आप उससे अभी ट्रैवल कर ही नहीं सकते। अभी प्रताप सरनाइक जी को कहना पड़ा कि हम जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं है, ये सभी योजनाएं एसटी में हम बंद करने वाले। उससे अच्छा हम कहेंगे एक लाडली बहन योजना बंद कर दीजिए, एसटी को आप अगले 2 सालों तक आराम से आप उसको फंडिंग कर सकते, उसकी स्थिति सुधार सकते। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि लाडली बहन योजना इनको वोट खरीदने का मशीन है, अच्छी स्कीम है, ये स्कीम ये चालू रखेंगे। लेकिन ये स्कीम चालू रखने के लिए पूरा महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, पूरी एसटी बर्बाद हो जाएगी। बीएसटी बेचने को निकाले अभी, ये हुआ तो भी इनको चलने वाला है। आप देखिए 2 साल में महाराष्ट्र की अवस्था क्या होने वाली है सर। बीएसटी को बेचने वाले हैं। भरत सोनी साहब, एक सवाल रह गया आपसे। भरत सोनी साहब, माय फॉल्ट, आई शुड हैव आस्क्ड यू दैट। दोनों, योगेश चिले साहब और मुकेश गांधी साहब, दोनों ने इस बात पर एग्री किया कि जिस प्रकार बुलडोजर चला यूपी में, वैसा ही कुछ
यहाँ पर भी होना चाहिए. Do you agree with that, sir? भरत सोनी साहब. बिल्कुल नहीं सर। सर महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। महाराष्ट्र में हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं इस बुलडोजरवाद का विरोध करता हूं और बुलडोजर नहीं चलना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में और यूपी में ये लोग को बनाना ही है महाराष्ट्र को यूपी। सर पहले वो लोग यूपी को महाराष्ट्र बनाने चले थे, वो तो हो नहीं रहा है, इसलिए अभी महाराष्ट्र को यूपी बनाने चले वो लोग, इसलिए वो बुलडोजर लाके बुलडोजर से ही काम चलाएंगे सर। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर न कभी बुलडोजर चला है और न चलना चाहिए सर, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोग भाईचारा से रहते हैं। देखिए सर, मैं गुजराती स्पीकिंग हूं, मेरे सारे दोस्त मराठी स्पीकिंग है, साउथ इंडियन है। हम लोग इतने साल से भाईचारे के साथ रहते हैं और महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। महाराष्ट्र की तुलना अगर आपको करनी है तो उसी दिन महाराष्ट्र के साथ डिवाइड हुआ भाषा के ऊपर गुजरात राज्य, उसको देखिए, अभी भी वो डेवलपमेंट ला रहा है सर, अभी भी उसको यहाँ से सारे उद्योग गुजरात लेके जाने पड़ रहे सर। अगर 30 साल से जो सत्ता पे जो शासन है वहां पर वो लोग कुछ नहीं कर सके तो मेरा महाराष्ट्र कितना अच्छा है, मेरा महाराष्ट्र कितना प्रोग्रेसिव है, मेरे महाराष्ट्र में कितनी एक जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन इनको इस महाराष्ट्र में कब्जा करना है और मराठी कल्चर जो है, मराठी अस्तित्व जिसको बोलते हैं, उसको खत्म करना है। इसलिए इनको उद्धव ठाकरे को खत्म नहीं करना है, इनको राज ठाकरे को खत्म नहीं करना है, या इनको एकनाथ शिंदे को खत्म नहीं करना है। इनको ये जो मराठी कल्चर है सर, जिसमें हम लोग एक साथ सब मिलकर रहते हैं, उसको खत्म करना है। बस इसके बाद इनका एजेंडा चलेगा। सोनी साहब, राहुल गांधी जी ने कल एडमिट किया कि हम ब्राह्मण, दलित और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट के चक्कर में ओबीसी समाज को हम भूल गए, ओबीसी समाज हमसे दूर चला गया। तो क्या, और फिर दूसरे जगह वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का महाराष्ट्र इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, ये बार बार हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, रिकॉर्ड्स नहीं दे रहे। तो क्या ये बार बार ये इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शन ठीक नहीं था, हम जीते थे, हम कैसे हार, तो हाउ डू यू सी दिस? ये टेप कब तक चलता रहेगा सोनी साहब? देखिए प्रदीप जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राहुल जी को कोट करके जो बातें कही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है, सर राहुल जी ने और यहाँ पर प्रेस स्टेटमेंट लेके, जिसमें महाविकास आघाड़ी के जितने नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था किस प्रकार से इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। सर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 2019 से 24 में 32 लाख वोटर बढ़े, असेंबली इलेक्शन के पहले 39 लाख वोटर्स बढ़े। सर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 9.54 करोड़ वोटर्स है। सर अभी एडल्ट पॉपुलेशन जो आप गिनेंगे तो वो 9.70 है। अब सर एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स कैसे हो सकते हैं जी? सर आप महाराष्ट्र के जो ये मेरा डेटा नहीं है, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन में जो डेटा है उसके ऊपर है सर। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन के पास इसके बारे में प्रस्तुत किया था ना, आपको जवाब मिला है भैया। बोलिए सोनी साहब, बोलिए। सर इलेक्शन कमीशन के पास प्रस्तुत करके जवाब नहीं दे रहे, वही तो राहुल जी बोल रहे हैं। नहीं जवाब दिया है, इलेक्शन कमीशन हैज नॉट रिप्लाइड। खड़गे जी को मिला है नहीं, और खड़गे जी ने वो लोगों के पास प्रस्तुत नहीं किया है। आप खाली ऑपोजिशन करेंगे और ऑपोजिशन करने के बाद में जब आपको आंसर मिलता भी है तो भी आप पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप अपनी पुरानी टेप खाली बजाते हैं, ये भी गलत है ना। चिले साहब, राज ठाकरे साहब ने भी आलोचना किया था इलेक्शंस का, उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंसेस दिए थे कि हमारे इस इलाका में एक भी वोट नहीं मिला, हमारे कैंडिडेट इतना काम किया, उसको इनफैक्ट आपका एक अच्छा कैंडिडेट भी हार गया। तो किस प्रकार से ठाकरे साहब ने, राज साहब ने भी आलोचना किया है चुनाव का? चिले साहब। सर सुना ही नहीं दिया मुझे, फिर से पूछेंगे आप? राज साहब ठाकरे जी ने भी चुनाव का आलोचना किया, बोले कि जैसे आज राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्शन वाज रिग्ड, टोटली इलीगल जीत है, इनका जीत इलीगल है, ये तो राज साहब ने भी एक कुछ कहा था कि ही आल्सो डजंट बिलीव दैट महायुति इतना मेजॉरिटी ले सकती है अपने आप। चिले साहब। सर मैंने पिछली बार भी आपको एक एग्जांपल दिया था, हमारे एक कैंडिडेट थे संदेश देसाई करके, जो वर्सोवा विधानसभा से खड़े हुए थे, उन्हें 2019 में भी
जितने वोट मिले थे कुछ 5,090 वोट मिले थे, 2024 में भी उनको 5,090 वोट ही मिले, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये हो सकता है क्या सर? तो हमें इसी वजह से कुछ महाराष्ट्र के गांव ऐसे हैं जहाँ पे वोटर 300 है और वोट मिले 600। ये कहाँ से आए 300 वोट एक्स्ट्रा? ये 76 लाख वोट्स जो है, इनका पूरा घपला अगर निकलेगा तो ये इलेक्शन ही कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन वो होगा नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो रूल्स रेगुलेशंस लाए थे, वो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ये सुनेंगे ना तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इनको लोकतंत्र चलाना है या इनको लोकतंत्र की हत्या करनी है? ये इतने 4 रूल ही बस है ये सब बताने के लिए। इनका पहला रूल था कि 1 और 2 नंबर पे जो है सिर्फ वही आक्षेप ले सकते हैं, वही ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 3, 4, 5, 6 जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस नंबर पे आए हुए, वो कोई भी आक्षेप नहीं ले सकते इस पूरी प्रक्रिया पे। अगर मुझको किसी बूथ पे प्रॉब्लम है, किसी बूथ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वोटिंग बराबर हुई नहीं है, मुझे 47,000 भरने हैं। मेरे पनवेल विधानसभा क्षेत्र में 600 बूथ थे, मुझे अगर 100 बूथ का प्रॉब्लम है तो मुझे 47 लाख रुपए भरना है। उसके बाद ये करेक्शन पे आएंगे। अभी करेक्शन पे मान लीजिए मैंने 47 लाख भर दिए, अभी ये कहते हैं कि हम आपको वीवीपैट मशीन से जो चिट्ठियां आ रही है वो गिन के नहीं देंगे, नहीं और देंगे। ईवीएम मशीन पे जो डेटा है वो पहले इरेज करेंगे, उसके बाद हम आपको मॉक दे देंगे कि भाई ये 50 वोट आप डालो, मशीन ठीक है कि नहीं ये बताएंगे। ये का हमको देखना है मशीन ठीक है कि नहीं। तो ये जो रूल लाए ना, ये सब बता रहे हैं कि आपको इलेक्शन फेयर नहीं करना है, आपको लोकतंत्र की हत्या करनी है। एक बार फेयर इलेक्शन पे आ जाओ एक बार बैलेट पेपर पे, देखते हैं कौन जीतता है वो। जी दुरुस्त बात, प्रदीप जी, एब्सोल्युटली। जिस राज्य का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़ है, उसका इलेक्शन का जो वोटर्स कैसे 9.70 हो सकता है? सर इसके ऊपर नहीं सर। और देखिए, मैं तो बिल्कुल गली से जुड़ा हुआ हूं सर। इलेक्टोरल रोल जो है, इलेक्टोरल कमीशन देता है, वो लोग नहीं दे रहे राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी जो मांग रहे हैं वो इलेक्टोरल रोल दीजिए बोल रहे, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। गांधी साहब, इलेक्टोरल रोल, प्रदीप जी एक मिनट सर। इलेक्टोरल रोल सर, आप मेरे को मैं जितने साल से राजनीति में हूं, आप मुझे इलेक्टोरल रोल दोगे तो मैं बूथ वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और म्युनिसिपल वार्ड वाइज उसको सेग्रीगेट करके दे दूंगा। तो आप सर, और ये क्या बोलते हैं, आप जाके डाउनलोड करिए। मैं क्यों डाउनलोड करूं सर? मुझे इलेक्शन कमीशन के नियम के हिसाब से क्या मैं पैसा भरूं तो मुझे आप फिजिकल इलेक्टोरल रोल दोगे? आप यहां पर रोल नहीं दे रहे हो। राहुल जी जो मांग रहे हैं वो इलेक्टोरल रोल मांग रहे, 5 महीने से नहीं दे रहे वो लोग, क्योंकि देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे वो। गांधी साहब, आपके जो मेहनत है, अजित पवार जी का कि जो मेहनत हमने किया, गली गली पहुंचे, गोर गरीबों की समस्याओं को झूल लेके हम लोग उलझते रहे, सॉल्व करते रहे, क्या ये पूरा पानी फेर रहे हैं इलेक्शन जो कैंपेन है कि मिसलीडिंग है, जीता नहीं है, फर्जी है सब? हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब? देखिए, ऐसा है कि जो जीता वो सिकंदर, ये तो पहले मान जाओ मेरे भाई। और बाद में अगर आप ऐसा नाटक करोगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो बात गलत है। जब इंदिरा गांधी जी बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन कराती थी, और तब भी बैलेट में कितने गफले होते थे और कितने लोगों का प्रॉब्लम होता था, खड़ा होता था, कितनी बड़ी गैंगे उसमें लगी हुई थी, वो पुराना इतिहास आज भी आपको मालूम है। आज बैलेट पेपर की जगह ये ईवीएम मशीन आने के बाद में एकदम साइंटिफिक, लॉजिकल एंड ट्रांसपेरेंट पूरा हो रहा है। सर, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? फिर भी सर ट्रांसफर ही नहीं है मुकेश भाई, सर, ये ट्रांसपेरेंसी तो ही नहीं है, वही तो बोल रहे सर, हैं। ये आपके उठाए हुए इश्यू है। अगर आप So sir, why is the election सर, commission not ईवीएम giving the मशीन जो role? कंपनी बनाती है उसके संचालक मंडल में बीजेपी का मंत्री क्या कर रहा है?
नहीं 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 सर, आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में जाकर के आप केस There you कीजिए, go क्यों नहीं again. करते हो? वहाँ पे उसका क्या आप काम है डरते सर? हो, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हम लोग देख सुप्रीम चुके कोर्ट में हाईकोर्ट ने करिए। क्या जजमेंट दिया हो। आपने कोई कोर्ट में गए नहीं है, कोई एविडेंस दिया नहीं है। Sir, ये evidence- सब आपकी Sir, मिली that हुई depends. भगत की एक बनाई हुई स्टोरी है और सर ये इसमें कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इसको- आपके इसको- भक्त लोग यूज इसको- करते हैं वहां से नहीं आप- निकाला हूँ। मुकेश गांधी साहब वर्सोवा का कैंडिडेट चलता है। मुकेश गांधी साहब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये का आपको क्या सर तो सर, महाराष्ट्र आप ही लॉजिकल नवनिर्माण आंसर दे सेना दीजिए, का जिस उम्मीदवार को अरे योगेश चिवे साहब 2019 एक में मिनट 5090 वोट्स मिले उस 5090 2019 उसी में विधानसभा और क्षेत्र में 5090 वोट मिले कैसे? 2025 में ये क्या है यार? जी, वो जाने उसमें इलेक्शन कमीशन और यूपी गवर्नमेंट का क्या लेना देना। उसकी पब्लिसिटी बढ़ी नहीं, उसने काम There you ज्यादा go नहीं again. किया तो उतने ही मत में अटक गया बेचारा। There you go. उसका गए। कहना ये 2019 में उसके पत्नी विद्या पत्नी है, उनका वोट वहां पे रजिस्टर्ड नहीं था। 2024 में उनका वोट भी रजिस्टर्ड था, वो भी उनको नहीं मिला है सर। नंबर वन आपको नंबर ये टू proof लेके मुकेश कोर्ट में गांधी आपको साहब नहीं सर, के जो Why उम्मीदवार थे, is- उनके आप घर में हाईकोर्ट 4 में- वोट थे सर, ये- और वो बूथ ये पे सारे- उनको सिर्फ 2 वोट मिले हैं सर। सर ये आपके ये सारे कहीं मुद्दे- मुकेश गांधी का- साहब घर के 2 मुकेश गांधी ये आपके साहब सारे पॉइंट्स हमने 10 अगेन मिनट में मुकेश गांधी साहब आप हाईकोर्ट में जाइए। मुकेश गांधी साहब व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन अनविलिंग टू रिलीज द इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल्स मांगे हैं ना, व्हाई आर दे नॉट रिलीजिंग? इलेक्टोरल election रोल्स में इजाफा कैसे हुआ, कब हुआ, कब वोटर्स रजिस्टर हुए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कांग्रेस ने मांगा है और बाकी अन्य पार्टीज ने मांगा है। जब इलेक्शन कमीशन रिलीज नहीं करती है तो डाउट अराइज होता है, शक पैदा होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार, ये तो एकदम दे देना चाहिए था, ये तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना सर। इलेक्शन कमीशन शुड हैव गिवन इट इमीडिएटली कि दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये कोई टॉप सीक्रेट थोड़ी है सर, कोई डिफेंस सीक्रेट थोड़ी मांग रहा है। इलेक्टोरल रोल में जो इजाफा हुआ है वो मांग रहे हैं ना, तो दे दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? 6 महीने हो गए सर, अभी तक नहीं रिलीज हुआ। अब आप बताइए, किसी के भी मन में शक पैदा होगा, किसी के भी मन में पैदा होगा कि गड़बड़ है यार। अब आप बताइए नहीं, मुकेश गांधी साहब। आप मेरे हिसाब से इनके जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आपको आने वाले 1-1.5 महीने में मिल जाएगा। मेरी लास्ट वीक में भी एक कंसर्न ऑफिसर के साथ में इसके बारे में बात हुई थी। वो बोलते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ये पूरा इनका जो इनको डाउट्स है उसके बारे में I ओपन hope एक so. वापिस एक सेशन करने वाले हैं, सबको बुलाने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन लाएंगे, फिर उनको विश्वास होगा। Sir, अगर वो नहीं what is the करेंगे solution? तो हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। सर व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, जैसे योगेश चेले साहब कह रहे हैं या भरत सोनी साहब कह रहे हैं, रिलीज द डेटा, ये लो यार, दिस इज द डेटा। सर रेडी है, उनके पास प्रिंटेड है सर। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे, जी। मैं बैंकर हूँ, एक बटन दबाएंगे तो वो निकलेगा दैट्स statement। एग्जैक्टली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। सर वो सुप्रीम उसके कोर्ट ने लिए exactly वही आप- चीज मैं- कही। मैं भी आपके साथ में रहूंगा, हम उनको कमिश्नर को परसुएट करते रहे और ये मांगते रहे और उनको देना ही पड़ेगा। Sir, आज it नहीं is तो not the कल। election commission's data, it is the data of the country. That's all I They- believe. they must- Sir, they I must believe, give. sir, I believe, very frankly, I believe कि जो महायुति है उसकी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोली बहुत अच्छी रही, क्योंकि आप लोग वो स्कीम क्या लड़की बहन स्कीम लेकर के आ गए। That's it. Sir, money talks. Let's be very clear. And you know what works. Money talks and you know what works. I can't say it on air. My point is very simple, Mukesh Gandhi साहब. किसानों का सर दे वन, अभी अगले 5 साल के बाद बात करेंगे ना सर, 5 साल तो हो गए, अब 5 साल के बाद बात करेंगे, तब किसानों को कुछ और दे देंगे, किसी और को कुछ और। सर टेम्पलेट अभी बन गया है, मैं आपको बता रहा हूं भरत सोनी साहब, आप बिहार के लिए तैयार रहिए। जून जुलाई के अंदर बिहार में भी कोई ऐसी बहना योजना आने वाली है, उसके बाद वहां पर भी आपका वाइप आउट होगा, नहीं मिलेंगी सीटें आपको। मैं फिर बोल रहा हूं आपको सर, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये आपको सोचना है। वेरी फ्रैंकली अब तो इनको स्कीम मिल गई है। जो इंक्रीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ठीक है इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहे, एक बटन में अवेलेबल है, तो बटन में आप भी तो अवेलेबल कर सकते हो,
उसको लेके दुनिया के सामने दिखाओ। आप आज तक सिर्फ एलिगेशंस कर रहे हो, बटन दबा के पूरे डिटेल्स निकाल के लोगों के सामने डालो कि देखो इतना फर्जी वोटर्स है। डोंट यू थिंक यू कैन डू दैट आल्सो? They'll be further exposed. Sir, that is why what Mr. Chile is saying is the same thing. आप वीवीपैट मशीन का गिनती कराइए, सर वो लोग वो गिनती करने को तैयार नहीं है। और सर ये कहाँ की बात हुई कि इलेक्शन के अंदर 1 नंबर 2 नंबर ही मान सकेगा? सर हमारा इलेक्शन जब हुआ 1952 में शुरू, तब क्या बोला था कि जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा एक आम आदमी इलेक्शन में खड़ा रह सकेगा। ऐसे कोई एजुकेशन का नहीं, उसके ऊपर ये क्या क्या एजुकेशन वाला ही खड़ा रह सकेगा, जिसके पास पैसे है वही खड़ा रह सके, ऐसे कुछ नहीं था। वो अंग्रेजों के जमाने में था, वो अंग्रेजों के जमाने में था। दीजिए ना सर। करेक्ट, कर पाते करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दुरुस्त बात है। देखिए सर, भरत सोनी साहब, योगेश चेले साहब और मुकेश गांधी साहब, एक चीज सुन लीजिए। लोग जो हैं मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा एक आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं कि मुसलमानों की वजह से पाकिस्तान बना। आई एग्री विद यू, बना। मुस्लिम लीग को बहुत मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया, लेकिन जब रेफरेंडम हुआ ना सर, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, भरत सोनी साहब के सामने ये बात बोल चुका हूं। और द डेली में, आई वाज द एडिटर ऑफ द डेली, इसमें मैंने 6 के 7 इस पे आर्टिकल्स लिखे थे। सर आपको मालूम है, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वहां पर जब रेफरेंडम हुआ ना, मुसलमानों से पूछा गया क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे, क्या आप हिंदुस्तान में रहना चाहेंगे। सर आपको मालूम है हु आर द पीपल हु आर अलाउड टू वोट मुकेश गांधी साहब? ओनली दोज पीपल हु आर आइदर लैंड ओनर्स, जिनके पास जमीन थी, और हु आर टैक्स पेयर्स, और हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। यानी जो बेचारे कांग्रेस के और बाकी हिंदुस्तान के हित में जितने भी गरीब गुरबा मुसलमान थे, दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। मतलब सिर्फ 5% मुसलमानों ने वोट किया पाकिस्तान के लिए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान बन गया। सर आज की तारीख में हम लोग आजाद भारत में हैं, आजाद भारत में, और जब अंग्रेजों से ये पूछा गया कि यार ये इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस चेंज कीजिए, सबको अलाउ कीजिए, दे सेड नो। सर वी एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम आवर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से जब कोई चीज मांगी जा रही है, इलेक्शन कमीशन शुड गिव इमीडिएटली। माय पॉइंट इज व्हाई आर दे गिविंग? मुकेश गांधी साहब, दिस इज 6-7 महीने हो गए चुनाव को, अब तो दीजिए। व्हाई आर यू नॉट गिविंग? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आप बताइए सर मुकेश गांधी साहब, इज दैट अनरीजनेबल? मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर को आज नहीं तो कल ये इसका जवाब देना ही पड़ेगा। Correct, sir. I agree with ये you. ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं दिखाएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है इलेक्शन की, डेमोक्रेसी की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जी। तो ये जवाब मिलना चाहिए, और मैं ये जवाब इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए, मैं भी उसका आग्रह करता हूं। Thank you very much, sir. Thank you, gentlemen. So at least all three of us agree on one thing, that there should be more transparency, and irrespective of anything else, the election commission should be more forthcoming. कि उनको इतनी देर मतलब चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वेरी फ्रैंकली। जितना जल्दी जवाब देंगे। परमिट मी वन लास्ट 15 सेकंड्स। बोलिए सर। सर, द ग्रिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नेंस जिसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट का, वो इतना टाइट होना चाहिए कि वो डरने चाहिए नीचे के लोग। सर देखिए, मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन गया पूना की हॉस्पिटल को, वो 1 रुपया स्क्वायर फीट के ऊपर जगह लेके हॉस्पिटल चला रहा है। उसने 23 करोड़ रुपया पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स नहीं भरा। जी। उसकी दादागिरी और अकड़ कितनी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? दुरुस्त बात। सर ये हम लोग बोल रहे हैं। सर आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऐसी तो मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में इतनी हॉस्पिटल है कि जो अपनी दादागिरी से आज तक यही काम करते हैं। सर मंगेशकर हॉस्पिटल में तो एक औरत मर गई सर, एक महिला की मौत हो गई। मोदी जी को इसीलिए तो लाए थे हम लोग ये सबको बंद करने के लिए। सर खाली मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को भी ये बातों को उजागर करनी चाहिए। चलिए योगेश चेले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटी सी बात रह गई, योगेश चेले साहब, योगेश चेले साहब, अरे एक सेकंड, भरत सोनी साहब सुनेंगे। अरे भरत सोनी साहब, आपकी बात आ गई। 24 आवर भरत सोनी साहब 1 सेकंड, मुकेश गांधी साहब 1 सेकंड, लेट मी स्पीक टू योगेश चेले साहब। अलाउ मी सर, अलाउ मी टू स्पीक टू योगेश चेले साहब। सर योगेश चेले साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। वेरी गुड। योगेश चेले साहब, एक बात बस रह गई कि वो मराठी भाषा का जो मसला है,
जहां पर एमएनएस के कुछ लोग जाकर के, जिसने किसी ने एक्सक्यूज मी कह दिया, हिंदी में जवाब दे दिया, उसको आप अपने तरीके से सिखा रहे थे, तो वो क्या दोबारा शुरू होगा कि अब वो समाप्त हो गया है? सर प्लीज। नहीं, हमारा मुद्दा अलग था। उसे जिस तरीके से उसका नैरेटिव सेट किया गया वो गलत था। जी। हमारा मुद्दा इतना ही था कि आरबीआई का रूल है, कोई भी बैंक हो महाराष्ट्र में या किसी भी स्टेट में, तो उस स्टेट की जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, जी। वो पहली होनी चाहिए। दुरुस्त बात। वहाँ पे पूरा I जो agree. संवाद है वो उसी भाषा में होना चाहिए। महाराष्ट्र में ये नहीं हो रहा था। करेक्ट। हम सिर्फ निवेदन लेके, अभी लोकतंत्र में निवेदन लेके जाना, अपनी अपेक्षाएं बताना, ये तो गलत नहीं है। ये तो हम लोकतंत्र के हिसाब से ही हमारा पूरा बर्ताव था। फिर भी इनको क्या बुरा लगा मुझे मालूम नहीं। कोई शुक्ला करके उठा और वो गया सुप्रीम कोर्ट में, उसने याचिका दायर कर दी वहां पे कि एमएनएस की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। तो अभी अभी आप सोचिए, कोई परप्रांतीय आता है और अगर हमारी रजिस्ट्रेशन पे आएगा तो हम क्या चुप बैठेंगे? जी। उसका जवाब भी ऐसे ही मिलेगा। तो Correct. हमने महाराष्ट्र का जो एटमॉस्फियर है वो हमने बिगाड़ा नहीं है। ये जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, जो यहाँ पे अपना पेट पाल रहे हैं, हम उनके साथ भाईचारे से रहते हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि आप यहाँ की जो भाषा है उसका सम्मान कीजिए, वो सीख लीजिए। आप जब तमिलनाडु में जाते 1 महीने में तमिल सीखते हैं। आप आंध्र प्रदेश में जाते 1 महीने में आपको तेलुगु आ जाती है। कल मेरे पास एक वीडियो आया, कल परसों का ही रहेगा। तमिलनाडु से कुछ जो लेबर से उनको वहां से निकाला गया। क्यों? क्योंकि उनको तमिल आती नहीं। क्या ऐसा महाराष्ट्र में हुआ है कभी? लेकिन फिर भी ये सब पूरे मीडिया जो है, हिंदी मीडिया खास करके दिखाते कि महाराष्ट्र में यूपी बिहारियों पे कैसे अन्याय किया जाता है। अरे गुजरात में एक नाबालिग लड़की पे जब बलात्कार हुआ था तब पूरे के पूरे यूपी बिहारियों को एक रात में सबने निकाल दिया था। आसाम में 80 परप्रांतियों को ऐसे लाइन में खड़े करके गोली मार दिए थे, तब भी किसी को बुरा नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पे जब हम हमारी भाषा, महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है, राजभाषा है, उसके लिए हम आग्रह रखते हम अपेक्षा रखते कि आप वो बोलिए, तो इनको बुरा लगता है। वंडरफुल। हमें इस चीज लेकिन से योगेश सब चिल्ले साहब, सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली बार जब हम शो में आएंगे, आपके साथ मैं एग्री होता हूं सर, अगली बार जब हम शो में आएंगे, भाषा मराठी है जी, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। I agree with और you. यूपी के लोगों को यहाँ सद्भाव से रहना चाहिए। भरत सोनी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में केस करने की कोई जरूरत नहीं है। भरत सोनी साहब, वो अपने बोलिए। भाइयों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। भरत सोनी साहब। और वो सर, उसने जो मुद्दे सामने रखे, 2 मुद्दे रखे। एक तो राज ठाकरे हिंदू विरोधी। अरे जब गुजराती सोसाइटी में महाराष्ट्रियन आदमी को लोगों को रूम दिया, फ्लैट दिया नहीं जाता, तब ये आपका हिंदुत्व कहाँ रहता है? हमारा इतना ही सवाल है। आप Right. हमारे हिंदुत्व पे अगर सवाल उठाएंगे, वो भी राज ठाकरे साहब के हिंदुत्व पे, जब हम भोंगे उतार रहे थे, लाउड स्पीकर उतार रहे थे मस्जिद से, तो आपकी हिंदुत्ववादी सरकार थी, हमने तो 70% लाउड स्पीकर मस्जिद से उतार के दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का रूल है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट को, हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट को वो कायम वो रख नहीं पाए। आज सभी लाउड स्पीकर वापस मस्जिद पे लगे हैं। ये क्या हमारा अपयश है क्या? और तो दुख हम की ये बात है, कहते, दूसरा मुद्दा नहीं, गजवाए हिंद होगा। वो जो शुक्ला है वो कहता है जब गजवाए हिंद होगा तब यही यूपी बिहार के लोग, यही विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के लोग मराठों को बचाने के लिए महाराष्ट्र में आएंगे। मैं आपके जरिए से इनको बताना चाहता हूँ, जब पानीपत हुआ था वो मराठों का युद्ध नहीं था। उत्तर भारत के सभी राजाओं को अहमद शाह अब्दाली ने कुचल डाला था, तो उनको संवारने के लिए मराठे यहाँ से उत्तर भारत में गए थे। तो हमारा युद्ध नहीं था, हम बचाने गए थे। औरंगजेब पूरे उत्तर भारत के सभी राजाओं को कुचल गया था, सबको गुलाम बनाया था। उस औरंगजेब को हमने गाड़ा है, तो तुम आके हमको बचाने की जरूरत नहीं है। हम काबिल है, हमको हमारा खुद का संरक्षण करने के लिए। और चिल्ले साहब, ये दुख की बात बताने की जरूरत है कि आप महाराष्ट्र में हैं। और सर, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा मेरे सब उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों से, आपके जरिए, कोई सुनील शुक्ला उठता है और उत्तर प्रदेश विकास मंच, विकास सेना निकालते हैं, और तो भाई यूपी में जाके काम करो ना।
करेक्ट। उत्तर प्रदेश विकास सेना का काम महाराष्ट्र में क्या है? यूपी में तो कुछ करते नहीं आप। वहां पे लोगों को उठ के अपने माँ बाप को छोड़ के महाराष्ट्र में आना पड़ता है। उसकी लाज आपको लगनी चाहिए। वो छोड़ के आप यहाँ पे अलग अलग संगठन बना रहे हैं और यहाँ पे हमको पॉलिटिकल ताकत दिखाने जा रहे हैं। चिल्ला साहब, इससे एक किसको वक्त में विरोध है? शुक्ला- हमारा शुक्ला- कोई यूपी बिहार को विरोध नहीं, पहले से नहीं है। आप आओ, काम करो, लेकिन लीगली आ जाओ। एक वक्त में शुक्ला आपकी ही पार्टी में थे शायद, चिले साहब। आप भी उजागर किए थे कि अब पहले 4 साल 5 साल पहले हमारी पार्टी से जीवित हो गया था, हमारे लिए कैंपेन करता था, अचानक उस प्रकार से हो गया। वो तो कभी हमारे लिए कैंपेन कर रहा था, कभी वो आप में गया, कभी वो आशीष शेलार साहब के लिए कैंपेनिंग कर रहा था। वो एक पत्थर पे थोड़ी है, उसका पैर तो हर पत्थर पे। उसको जी। अभी उत्तर प्रदेश Mr. Soni wanted to say something. यूपी बिहार का मसीहा बनना है। जी, जी। तो बन लो भाई, बन लो। So, तो but जब हम उतरेंगे रास्ते पे तो I agree पता with you. चलेगा मसीहा बनना क्या होता है। Bharat Soni Saab, before we go, you wanted to say something. You shouldn't accuse me of ignoring you. Please go ahead, sir. सर मैं वो बैंकिंग के रिलेटेड मैटर था, मराठी लैंग्वेज का बैंकिंग के रिलेटेड मैटर था, इसलिए मैं मेरे कमेंट्स देना चाहता था, क्योंकि मैं भी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू आया था। सर देखिए, पहले के जमाने में 4 रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करते थे, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ और साउथ रीजन। उसमें नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज वाज एसेंशियल। ऐसे इंटरव्यू में भी मराठी में, महाराष्ट्र रहेगा तो मराठी में, गुजरात में रहेगा तो गुजराती में क्वेश्चंस पूछते थे और आंसर उनको उसी लैंग्वेज में देना जी, होता था। correct. और Wonderful. दूसरा, वो उस वहां का लोकल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देते थे। हाँ, तो सर अभी ये महाराष्ट्र के अंदर क्लेरिकल जॉब के लिए बाहर से लोग कहां से आने लग गए? Correct. सर वहां पर प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर एक भी आदमी लोकल लैंग्वेज में बोलने वाला नहीं था। सर मैं जब डेप्यूटी रीजनल मैनेजर था भरूच रीजन का, तो एक बेचारी यंग लड़की, अनमैरिड लड़की, 19 साल की लड़की, बिहार रहने वाली, उसको भरूच के अंदर, भरूच से 120 किलोमीटर दूर बॉर्डर के ऊपर, मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, वहां पर पोस्टेड। सर अगर उसको बिहार में आप अगर जो जॉब दे सकते तो वो बेचारी क्यों भरूच आती? सर ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस और जो ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस का जो निकाल दिया वो गलत है। सर महाराष्ट्र के अंदर एटलीस्ट क्लेरिकल लोग तो मराठी होने चाहिए और या तो मराठी जानने वाले होने चाहिए। सर देखिए, मैं भी मराठी फ्लुएंटली बोलता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं और बोल सकता हूं। मुकेश भाई भी बोल सकते हैं, हम लोग सभी लोग बोल सकते हैं। तो वो लोग आए तो उसमें कोई नहीं है सर, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए ये जो गलत किया है उसको निकाल दिया, उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए कि आपको मराठी लोकल लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं उनको आपने एम्प्लॉयमेंट में लेने के टाइम पे ही देखना पड़ेगा। ये मैं कहता था। I agree with you. I absolutely agree with you. Thank you, सर gentlemen. सिर्फ एक बात मुझे कहनी है सर। बोलिए सर। अभी 2-3 दिन पहले इनकम टैक्स का रिजल्ट आया, 1200 लोगों की भर्ती वहां पे हुई, सिर्फ 3 मराठी लोग हैं। 3 सिर्फ 3 लोगों को 1200 में से 3 1200 में से सिर्फ 3 लोग क्या महाराष्ट्र बात के है, हैं। वंडरफुल। अभी आप सोचिए, ये जब हमारे युवक जो है उनको पता चलेगा, क्या उनको दुख नहीं होगा? तो That's right. हिंदुत्व जो कहते हैं, तो ये जो महाराष्ट्र के हमारे युवक है वो हिंदू नहीं है क्या? उनपे आप अन्याय किए जा रहे हो। आपको लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सिर्फ सहे जाएंगी ये सब? ये सर कैसे चलेगा सर? मैं आपके समर्थन में एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी जब शिवसेना में था तब बांद्रा में प्रोविडेंट फंड की जब वहां रिक्रूटमेंट हो रही थी, गजानन कीर्तिकर लोकाधिकार समिति चलाते थे, तब भी ऐसी घटना हुई थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के जितने शिवसेना, मनसे या जो भी हमारी पार्टी होगी, एनसीपी होगी, जो भी पार्टी होगी, उन सभी को लोकल मराठी हमारे युवकों को ये अलग अलग गवर्नमेंट की जो सेंटर की जो जितनी भी योजनाएं होती है, एम्प्लॉयमेंट की जो आती है ऑफर, उनके लिए उनको तैयार करना चाहिए। जो लोकाधिकार समिति काम करती थी उसको वापस कार्यान्वित करो और जितनी भी सेंटर एजेंसी है उसमें ज्यादा से ज्यादा मराठी लड़कों को रिक्रूट करो। बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां नहीं आने वाली है, कल भी नई बड़ी कंपनी आएगी, तो इसमें मराठी युवकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगारी देने का लोकाधिकार समिति के माध्यम से या जो कोई भी आयोजन करके आप मनसे को और हमारी शिवसेना को ये काम उठा के करना चाहिए।
तो मराठी युवकों को मिलेगा, नहीं तो यूपी आएंगे, बिहार से आएंगे, अन्य स्टेट से आएंगे और वो अपनी नौकरी लेकर के यहाँ सेटल होते ही रहते हैं। That's right, सर sir. इससे All right, अच्छा gentlemen, solution- we've run out of इससे time. अच्छा सोल्यूशन ये है कि जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था जी। वैसे सरकार ने वापस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर लेबर मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तो बात छोड़ो सर, उसके ऊपर एक अलग से शो करेंगे एंड वी विल डू हाफ ऑफ इट एटलीस्ट इन मराठी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहे हो सर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में अभी हो क्या रहा है उसके ऊपर एक और शो करना पड़ेगा सर। जाने दो अभी। और चिले साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि एक मराठी में शो हो जाए तो होना आप चाहिए। कीजिए, मैं आपको वहाँ का अलग अलग भ्रष्टाचार के जितने भी प्रकार है सब बताऊंगा आपको। सर भ्रष्टाचार तो तब होगा जब आचार होगा, जब ना सदाचार हो रहा है ना आचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार कहां से होगा। एटलीस्ट जब भ्रष्टाचार होता था तब वहां पर कुछ काम तो हो रहा था, अब तो कोई काम ही नहीं हो रहा सर। थैंक यू जेंटलमैन, मुकेश गांधी साहब, योगेश चिले साहब, भरत सोनी साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग Thank टू you, यू। sir. वंदे मातरम। नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम, Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। जय भवानी, जय शिवाजी, जय जय भवानी। भवानी, जय शिवाजी। thank you. Well, we finally got them interested. Yes. and nobody wanted to leave. That's the whole Yes. point. I feel so good. That's very nice. Topic of the day, actually the topic of the day. That's right. Yeah, but the fact remains, you need to learn the local language. अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो भाई लोकल लैंग्वेज आपको आनी तो चाहिए। स्थानीय भाषा जो है अगर वो आपको नहीं आएगी यार, ये क्या है। And what he talked about, चिले जी जो बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है only 3 out of 1200, That's shocking. 1200 में से सिर्फ 3 महाराष्ट्रियंस को That लिया is गया, shocking. सिर्फ 3। That's shocking. Oh yeah, that's absolutely terrible. Right, that's it in tonight's show. Once again, आप सब लोगों को महावीर जयंती की बहुत शुभकामनाएं और भी बधाई के तहावुर राणा को एक्स्ट्राडाइट कर लिया गया। He is now here in India. He is in Delhi. A special cell has been created for him in Tihar, where he will be sleeping tonight. And that's it. That's all we've got for you. Subscribe जरूर करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। The fastest growing channel of the nation now. That's right. And thank you very much for your support. Keep supporting us. And if you want to share the channel with others, that will be a pleasure. Thank you so much, gentlemen and ladies. Namaskar from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, One day, Mata. भारत माता की जय। Bharat Mata ki.